Hello, dear friends. You all welcome back to Bodhluar Academy. In the last video of exercise 4.3 class 10 NCERT, we have discussed the question number 3, 4 and 5. In this lecture, we will discuss the furthermore 3 examples from the exercise 4.3 of quadratic equation for the class 10. Now see, what is the question number 6? Okay. Now see. The diagonal of a rectangular field. Okay, ठीक है. रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल. तो हम पहले स्केच बना लेंगे कि दिस इज और रेक्टेंगुलर फील्ड एंड दिस इज नथिंग बट द डायगोनल. ठीक है. अब देखिए क्या कहा है कि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड. अब देखिए ये हो गया लॉन्गर साइड, ये हो गया शॉर्टर साइड. इफ आई कंसिडर शॉर्टर साइड x, नाउ सी the diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. That means x plus 60 meter more than the shorter times. That means x plus 60. Okay, 60 meter. Okay, x meter. Okay, unit क्या है यहाँ पे मीटर. If the longer side, हमने पहले किया कि ये है शॉर्टर साइड, ये है लॉन्गर साइड. If the longer side is 30 meters more than the shorter side. What is shorter side? X. How many meter more? That is x plus 30 meters. That is nothing but the longer side. Find the sides of the field. यानी कि हमको क्या निकालना है? Length and breadth. अब देखिए ये हो गया हमारा right angle triangle. Yes, is this is a right angle triangle. Use the hypotenuse theorem. What is the hypotenuse theorem? Hypotenuse theorem, that means x plus 60 whole square equals to sum of squares of both sides. That means x square plus x plus 30 whole square. Just solve this, rearrange and get the quadratic equation. Now see, a plus b whole square formula. What is a plus b whole square? A square plus b square plus 2 times ab. Very good. X square plus 60 whole square plus 2 times a is how many? X. B is how many? 60. Very good. Now see, x square as it is. Here also a plus b whole square. X square plus 30 whole square plus 2 times a into b. Okay, no problem. Just calculations. Now see, x square 60 whole square 3600. Okay, plus now see 2 into 60 120 into x as it is equals to x square 2 times x square. Very good. 30 square 900 plus 2 times 30 means 60 times x. Is it okay? Now see, I am shifting all the terms from the right hand side to the left hand side. Okay, that means x square plus 3600 as it is plus 120x as it is. Now see, while shifting on the left hand side, plus 2x square becomes minus 2x square and plus 900 minus 900 and plus 60 minus 60x equals to 0. Now see, अब देखिए ये है एक्स स्क्वायर, ये है माइनस 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, अब देखिए ये 3600, ये माइनस 900, हाउ मेनी? प्लस 2700. यस, नाउ सी 120x माइनस 60x, 60x नो नीड्स टू वरी, देयरफॉर इक्वल्स टू 0. अब देखिए, अब थ्रू आउट इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा. अगर मैंने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा. अब देखिए इसको मैं सेकंड टर्म ले लाऊँ, ये हो जाएगा 60x, ये हो जाएगा माइनस 2700 इक्वल्स टू 0. इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस. व्हाई इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिकॉज इफ आई कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई गॉट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a 1 which is a non-zero, and how many b? Minus 60, and c is how many? Minus 2700.
Yes, we got the quadratic equation. Now see, we have different methods to solve this quadratic equation. Okay, we wants to find the sides, that is the shorter and the longer side. Okay, shorter side is x and longer is nothing but x plus 30. If you found x, then this is nothing more to find. अब देखिए, we will use the direct formula method to find the values of x from this quadratic equation. Okay, अब देखिए क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b square minus 4ac by 2 times a. Therefore x equals to minus of how many b? B is how many? Minus of 60. Minus 60 plus minus under root of b square minus 60 whole square 3600 minus of 4 times a is how many? 1. C is how many? Minus 2700. Okay, no problem. Upon 2 into a is how many? 1. Therefore x equals to minus minus get plus 60 plus minus under root of, now see, 3600 minus minus get plus, now see, 4 into 1 again 4, therefore 2700 into 4 0 0 8 2, that means 10800 upon 2. अब देखिए जस्ट हमको अब क्या करना है, स्क्वायर रूट आपको स्क्वायर रूट पता रहना चाहिए. ओके, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला में यही एक डिफ़िकल्टी आपको आ सकती है. अब देखिए x इक्वल्स टू 60 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ना यू वांट एडिशन ऑफ 10800 3600 0 0 4, this is 4 1 4 4 00 by 2, and now see, square root of 14400 is how many? 120. That's why 60 plus minus 120 by 2. Now just a calculation, x equals to 60 plus 120 by 2 and x equals to 60 minus 120 by 2. Okay, पहली बार हमने प्लस ले लिया, सेकंड बार देखिए 60 plus 120 180, 180 by 2 90. Therefore x equals to 90 meter. Okay, x is how many? 90 meter. Now see here again, 60 minus 120 minus 60 minus 60 by 2 minus 30. But side can't be negative. नहीं रह सकते ना भाई, negative side कैसे रहेंगे? तो इसलिए we are neglecting this root. Okay, we are taking this. Therefore x equals to 90 meter, यानी कि ये हो गया 90. ओके, यानी कि शॉर्टर साइड कितना हो गया 90 मीटर. अब हमें लॉन्गर साइड फाइंड आउट करना है, तो x कितना है हमारे पास 90, 90 प्लस 30 120. दैट्स इट. वी फाउंड द टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड. ओके, लेंथ कितना है 120 मीटर और ब्रेड्थ 90 मीटर. दैट्स इट. इजी था. जस्ट पहले समझ लीजिए, जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिया है उसको मैथमेटिकल में फॉर्मुलेट कीजिए. जस्ट फिर ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया था. आफ्टर दैट क्वाड्रेटिक वी यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7. Boys, are you sleeping? No, you don't have to sleep, boys. Now see the question number 7 from the exercise 4.3. Now see the solution. The difference of squares of two numbers is 120. Okay, अब देखिए. Now let us consider, let the first number be x. Okay, and let the second number be y. ठीक है, पहला नंबर x कंसिडर कर लिया हमने, दूसरा y. अब देखिए क्या दिया है गिवन कंडीशन, द डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन. ओके, दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स. द डिफरेंस ऑफ द स्क्वेयर्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वेयर डिफरेंस y square equals to 180. The difference of the
स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। ठीक है ना, हमने पहले कंसिडर कर लिया कि भाई हमारा पहला नंबर x था, दूसरा नंबर y था, और इनका स्क्वायर करके जो भी डिफरेंस आएगा वो कितना दिया है हमें 180। अब देखिए सेकंड कंडीशन। ओके, अप टू दिस नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे और एक कंडीशन ध्यान में रखना। अब देखिए ये जो इक्वल्स टू आया ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। दैट मीन्स यहाँ पे x कैसा रहा होगा? मच लार्जर देन y। आयदन में अगर भाई x अगर छोटा रहा, y से छोटा रहा, तो ये तो निगेटिव आएगा ना। ओके, अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल x मैंने कंसिडर कर लिया 3 का स्क्वायर, और y कंसिडर कर लिया 2 का स्क्वायर। अब ये हो गया 9 - 4 इक्वल्स टू हाउ मेनी? पॉजिटिव। कितना आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि मैंने x क्या कंसिडर कर लिया था? बिगर एज कंपेयर टू y। इफ आई कंसिडर x 1 एंड y 2, अब क्या होगा भाई? 1 - 4 कितना होगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे y ग्रेटर लिया था। ओके, तो x कैसा है हमारा? ग्रेटर है। ओके, एज कंपेयर टू y। नाउ सी द सेकंड कंडीशन, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। ठीक है, हमने स्मॉल नंबर y कंसिडर कर लिया। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, दैट मीन्स 8x। दैट मीन्स 8x लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। ठीक है, हमको x और y निकालना है। अब देखिए y स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 8x। दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180। ओके, नो प्रॉब्लम। देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180। Is this quadratic? Yes. Why it is not quadratic? Because the coefficient of x square were non-zero. That means a equals to how many? 1. b equals to how many? -8. And c equals to how many? ओके, क्या कर लिया हमने? ये कैसे फाइंड आउट किया? ABC भाई हमने कंपेयर कर लिया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके साथ कंपेयर करके हमने क्या निकाला? वैल्यूज निकाला। अब देखिए, अब हमें निकालना है कि उन्होंने जो भी आपने नंबर कंसिडर किए थे x और y, इनकी वैल्यूज निकालना है। तो देखिए अब देखिए, एंड दे हैवंट सजेस्ट एनी मेथड टू फाइंड द क्वाड्रेटिक और टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अपनी चॉइस से भाई हम तो यूज करेंगे कि डायरेक्ट मेथड से हम जाएंगे। देयरफॉर डायरेक्ट फार्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 टाइम्स a। तो देखिए वी हैव द वैल्यूज ऑफ ABC, जस्ट गेट इट। देयरफॉर माइनस ऑफ b इज हाउ मेनी? -8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब देखिए b स्क्वायर दैट मीन्स -8 होल स्क्वायर, हाउ मेनी? 64। वेरी गुड, 64 minus 4 times a is how many? 1 and c is how many? -180 upon 2 times a is how many? 1। therefore x equals to minus get plus 8 plus minus, अब देखिए ये है 64। अब देखिए ये माइनस हो गया प्लस। अब देखिए 4 into 1 4, 180 into 4, तो निकालिए 180 into 4। what you want? 4 0 0 3 4 into 1 4, 720। how many? 720 and 720 plus 64 4, ये होगा 8 is 7 at 4। okay, therefore x equals to 8 plus minus under root of 784। then now what is the square root of 784? 28। very good, how many? 28। therefore x equals to 8 plus minus 28 by 2। बस अब तो आंसर मिल गया। therefore x equals to 8 plus 28 by 2 and second x equals to 8 minus 28 by 2। अब देखिए 28 plus 8 36, 36 by 2, how many? 18। x equals to how many? 18। अब देखिए ये होगा -20 by 2, therefore x equals to -10। अब देखिए मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे x क्या रहेगा हमारा? ग्रेटर। क्या रहेगा? ग्रेटर एज कंपेयर टू y। अब देखिए ठीक है, अब देखिए पहले हम ये वैल्यू लेंगे x इक्वल्स टू हाउ मेनी? 18। अब देखिए ठीक है, हमने x तो फाइंड आउट कर लिया, हमको y भी फाइंड आउट करना है, लेकिन y स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास कितना है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 टाइम्स x।
x is how many 18, x is how many 18, 18 into 8, 144. ओके, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 144. अब देखिए वाई स्क्वायर कितना है हमारे पास 144. ठीक है, अब देखिए आई एम टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दैट्स वाई स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसल, देयरफॉर y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 144 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 144 12. यस, y इक्वल्स टू 12. वेरी गुड बेटा. ओके, x कितना निकल के आया 18 और y कितना है हमारा 12. एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, अब सेकंड नंबर क्या है हमारा. ओके, अब देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि जब x इक्वल्स टू हमारे स्क्वायर रूट थे, जब x इक्वल्स टू हमारे पास 18 था तो y कितना हो गया हमारे पास 12. ओके, दिस इज द पॉसिबल केस. देखिए ये हो गया फर्स्ट पॉसिबल केस कि x इक्वल्स टू जब 18 रहेगा, y इक्वल्स टू हमारे पास कितना रहेगा 12. अब देखिए ये वैलिड भी है क्योंकि ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 180. तो देखेंगे, अब देखिए एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 18 होल स्क्वायर माइनस 12 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 180. 18 होल स्क्वायर इज नथिंग बट 324. 12 स्क्वायर इज नथिंग बट 144. अब देखिए कितना आएगा 324 माइनस 144 40, ये हो गया 8, ये हो गया 2, यानी कि सॉरी 1. ओके 180. ओके, देखिए जो भी हमने वैल्यूज फाइंड आउट की ये वैलिड थे. अब देखिए सेकंड x की कितनी वैल्यू है हमारे पास -10. ओके, तो हमारे पास x इक्वल्स टू कितना है -10. x इक्वल्स टू हमारे पास है -10. तो हमको y की वैल्यू निकालना है. तो देखिए y के लिए इक्वेशन है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 टाइम्स x. देयरफॉर y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू x इज हाउ मेनी -10. ये हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू -80. अब देखिए कितना आया y स्क्वायर इक्वल्स टू -80. अब देखिए आई एम गोइंग टू स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देयरफॉर y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -80. दिस इज द सेकंड वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ, दैट इज y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -80. ये क्या हो गई y की सेकंड वैल्यू, यानी कि यहाँ पे दो पॉसिबल केसेस है. ओके, जब x इक्वल्स टू 18 रहेगा तो y इक्वल्स टू 12 रहेगा. अब x इक्वल्स टू -10 रहा तो y इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट ऑफ -80. तो देखिए अब ये जो दोनों वैल्यूज हमने निकाली, ठीक है भाई निकाल तो दी, लेकिन हमको कन्फ्यूजन है कि ये वैलिड है कि नहीं. तो देखिए इसमें पुट अप करके देखिए वैलिड हो गए. देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आना चाहिए 180. ठीक है, x की कितनी वैल्यू है -10 होल स्क्वायर, y की कितनी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ -80 होल स्क्वायर. तो कितना आना चाहिए 180. -10 होल स्क्वायर 100. अब देखिए माइनस स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल, व्हाट रिमेन्स -80 माइनस माइनस प्लस, देयरफॉर वो 80 इक्वल्स टू हाउ मेनी 180. कोई डरने की ज़रूरत नहीं है. हमने जो भी पॉसिबल केसेस फाइंड आउट किए दोनों भी सही है, ये तो सही है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन दिख रहा था क्योंकि y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -80 आया था, लेकिन हमने डाल दिया. ये जो हमारा इक्वेशन था उन्होंने हमको शायद ये गिवन कंडीशन दिया था तो उसमें हमने डाल के चेक कर लिया तो सही है, ये तो नो प्रॉब्लम है. अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में जाए उसको भी देख लेंगे. इस वीडियो का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, अभी इसके इजी तरीके से लाएंगे. देखिए अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा, ओके एक तरीका. इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, ओके स्पीड क्या कर दी बढ़ा दी. कितनी बढ़ाई 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी. अगर स्पीड बढ़ा दी तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा लेस. तो देखिए इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, टाइम क्या हो गया 1 घंटा कम हो गया. फॉर द सेम जर्नी यानी कि 360 किलोमीटर उसको कवर करना था. ओके दे फाइंड द स्पीड. अब देखिए कंसिडर कर लीजिए, लेट x बी द स्पीड ऑफ ट्रेन. क्या है x बी द स्पीड ऑफ ट्रेन. अब देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसके जरिए पूरी कहानी निकल जाएंगी. देखिए स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस
पर यूनिट टाइम। दैट्स इट, यही फार्मूले से हमको सब निकालना। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो हमने डिस्टेंस कितना स्पीड कितना कंसिडर कर लिया, x। ओके, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना कवर करना है हमें, 360 किलोमीटर, ठीक है। ओके, अब देखिए ट्रेन की स्पीड थी x, डिस्टेंस कवर करना था 360 और टाइम कंसिडर कर लिया हमने t आवर। टाइम कितना कंसिडर कर लिया हमने, t आवर, ठीक है। ओके, स्पीड हमने रिलेट कर ली कि x है, 360 किलोमीटर हमको कवर करना है और कितने टाइम में, t टाइम में। अब देखिए आगे की कहानी। अब देखिए उन्होंने क्या कर लिया कि 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड क्या कर दी, बढ़ा दी। अब देखिए स्पीड कितनी थी हमारी पहले, x, अब उसमें कितना ऐड करना है हमें, 5। स्पीड कितने हो गए फिर, स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। क्या कर दिया उन्होंने, स्पीड बढ़ा दिया। तो टाइम क्या हो गया, 1 आवर से लेस। तो टाइम क्या हो गया, t-1। भाई अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो ऑटोमेटिकली टाइम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस। अब देखिए, अब इसी फार्मूले का यूज करना है हमें। अब देखिए स्पीड कितनी है हमारी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना कवर करना था, सेम डिस्टेंस भाई 360। अब देखिए स्पीड अगर हमने 5 से बढ़ा दी तो टाइम क्या हो गया, 1 आवर लेस हो गया। दैट मीन्स t-1, ठीक है। अप टू दिस नो प्रॉब्लम। अब देखिए व्हाट यू वांट टू फाइंड, यू वांट टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, दैट मीन्स x। ओके, x किलोमीटर पर आवर यू हैव टू फाइंड। अब देखिए भाई ये हमारा जो भी क्वेश्चन था उसमें जो भी गिवन इंफॉर्मेशन था उससे हमने ये पा लिया। अब देखिए इसको, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसको मैं x प्लस 5 इंटू t-1 इक्वल्स टू 360। मे आई राइट लाइक दिस, वाई कांट यू राइट, ओके, जस्ट आई हैव शिफ्टेड दिस t-1 हियर। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम, ये भी मिटा देता हूँ अब, फ्रॉम इक्वेशन 1 आई कैन राइट t इक्वल्स टू 360 अपॉन x। क्यों नहीं लिख सकता हूँ भाई, मैंने t को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया और इसको नीचे शिफ्ट किया। अब देखिए यहाँ पर t की जगह आपको पुट करना है 360 अपॉन x। कितना पुट करना है, 360 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 360। दिस इज द ईजिएस्ट वे टू फाइंड सच प्रॉब्लम्स। अब देखिए क्या करना है, ये हो गया हमारा x प्लस 5 एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स 360 माइनस x अपॉन x इक्वल्स टू 360। अब देखिए ये हो गया x प्लस 5, ये 360 माइनस x। अब देखिए x मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये हो गया 360 टाइम्स x, ठीक है, नो प्रॉब्लम भी। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, x इंटू 360, 360 टाइम्स x, x इंटू माइनस x स्क्वायर, 360 इंटू 5, 360 इंटू 5, 50 18 प्लस 1800 प्लस 5 माइनस x टाइम्स x इक्वल्स टू 360x। अब देखिए आई एम शिफ्टिंग दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स वाई 360x माइनस x स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5x माइनस 360x इक्वल्स टू 0 प्लस 360x माइनस 360x, गेट आउट कैंसल। ओके, बड़ा इजी सवाल है भाई, हमने बेहद ही सिंपल तरीका यूज़ किया है। अब देखिए क्या बचा है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5x इक्वल्स टू 0। जस्ट इसको रीअरेंज करना, क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने आगे ले लिया, ये होगा माइनस 5x प्लस 1800 इक्वल्स टू 0। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म मिलाना है तो क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, होगा जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। Is it a quadratic equation? Yes. Why it is not quadratic equation? Because if I compare with the standard form of a quadratic equation, I found the a equals to 1, which is a non-zero.
Okay, this is the first condition to be quadratic and b equals to 5 and c equals to minus 1800. What you have to find, that is, we want the speed of that train. That means we want the values of x. Okay, so solving this quadratic equation by any method you will get the values of x. तो हम चूज करेंगे भाई डायरेक्ट फार्मूला मेथड, दैट इज एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 टाइम्स ए. तो देखिए हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली है, माइनस हाफ. बी कितना है भाई हमारे पास 5 है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, दैट मीन्स 5 स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज हाउ मेनी 25 माइनस 4 टाइम्स ए कितना है हमारे पास, ए तो 1 है, और सी कितना है हमारे पास माइनस 1800. ठीक है, अपॉन 2 टाइम्स ए. ओके, ए कितना है 1. एक्स इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस, अब ये हो गया 25. अब देखिए ये माइनस माइनस हो गया प्लस, अब 1800 इंटू 4, क्योंकि 4 इंटू 1 4 एंड 4 इंटू 1800 400 7200 and 7200 प्लस 25 दैट मीन्स ये कितना हो गया फिर x इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7225 अपॉन 2. नाउ व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7225? हाउ मेनी? स्क्वायर रूट ऑफ 7225 इज नथिंग बट 85. therefore x equals to minus 5 plus minus 85 by 2. अब देखिए, we want what you want, we want the value of x. therefore x equals to minus 5 plus 85 by 2 and x equals to minus 5 minus 85 by 2. therefore अब देखिए minus 5 plus 85 80 by 2. therefore x equals to 40 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन. अब देखिए ये क्या हो गया, निगेटिव माइनस 90 by 2 x इक्वल्स टू माइनस 45, बट स्पीड कांट बी निगेटिव, दैट्स वाई x इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर. तो ये था हमारा आज का वीडियो का आखिरी सवाल. ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.